डॉक्टर जसकिरण चोपड़ा जी का वैली ऑफ वर्ड्स परिवार को उनका स्नेह और समर्थन वैली ऑफ वर्ड्स के पहले सत्र से ही हमें प्राप्त हुआ था। पिछले वर्ष का जो 7वां संस्करण था उसमें मुशायरा का संचालन उन्होंने किया था। इस सत्र के हमारे चेयर नवतेज सरना जी, जो एक भारतीय लेखक हैं, स्तंभकार हैं, राजनयिक हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं। उससे पहले वो यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त और इजराइल में राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं और इस सत्र की आप अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर जसकिरण चोपड़ा जी के बारे में आप कृपया 2 शब्द कहने के लिए मंच पर आएँ सर। नवतेज सरना जी। Thank you very much. Sachin has given me permission to speak in any language, so मैं जो भी पहले language मेरे दिमाग में आएगी मैं उसमें बोल दूँगा। I never thought that I would come to Dehradun for this purpose. This is my town in many ways. I've spent umpteen years, very happy years, with my parents and my sister here. And my only regret is that I did not come more often when she was with us. But this is life. I was particularly keen when I was invited by Sanjeev that I should do everything to be here, because there is nothing better than this that she would have liked. A gathering under the shadow of Mussoorie in Dehradun in early winter with literary friends. She was part of Valley of Words. I think she moderated a session every year. And in many ways, when you come here and talk about her, you feel that she's here. Because, you know, when I talk to her friends, I see gestures like Mr. Upendra Arora bringing out this poetry book of hers. So many old friends, colleagues, right from school, college. She used to be a different person when she was here and a different person when she was after Mohand. So when she came here, she would flower. She knew everybody, everybody knew her. She spent her entire working life writing about Dehradun and Mussoorie. From whether it was as a journalist or as a poet. Today, in the car traveling from Delhi to here, I reread her entire book, Memories of Another Day. And I realized that, you know, we used to always talk of the nostalgia of the lost Dehradun, the lost hills. But to actually express them in words, she knew every lane, every shop. She could express what had vanished. She could express nostalgia for whether it was, you know, the Rexine chairs in the old cinema halls or the Dispensary Road bookshop where we gathered a lot of wealth. She's written about all these things. And she was not someone who would push herself. There are a lot of us who push ourselves, you know. We write one book and then we want to go to, I do this, so I know. You want to go to 6 literary festivals with your book and try to promote sales and get it reviewed and all that. I don't think she ever did anything of the kind. But now when I see her collection of books, her poetry, her columns, her articles on films and film stars,
She was a living encyclopedia on the films and film stars of the 50s, 60s, 70s, and the 90s. Even I don't know, so I didn't even know what to ask her. But before that, she could tell you if any song came, she would tell you who wrote it, who composed it, which movie had it, which year it was out there. So these were her loves. And I think poetry, essentially she was a poet. Everybody has to do a day job. I'm not sure how many of the esteemed poets on stage need to do a day job, but she did a day job for years as a journalist. And even there she tried to bring in poetry into her reporting for you and I. And she would look at different angles which a normal journalist may miss. But I think in the last few years, she just wrote almost every day. She wrote a lot. Even when she had problems with her eyes, she would write. And I mean, the best gift that I think I gave her ever was 6 large notebooks. And she would write in very big handwriting, and the pages would just fill up. I'm so grateful to all of you that you will be reading from her poems. They deserve to be read. They deserve to be put out a bit more. And I think Ashutosh is doing a lot to make that happen in different ways, whether they are being composed as ghazals. And she wrote in every language. She wrote in Hindi, she wrote in Urdu. And she wrote prose, which was like poetry in English. I actually haven't seen a poem in English by her, unless Ashutosh can dig out some diaries. So I know we have a wealth of material, art, poetry waiting for us. I won't stand in the way any longer. But I just did want to give again to all of you my personal thanks for this very warm, very thoughtful gesture of yours. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच सर. डॉक्टर जसकिरण चोपड़ा, जैसा नवतेज सरना जी ने बताया, वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में लिखती थी. इसलिए इस सत्र में जो कवि हैं वो भी इन तीनों ही भाषाओं में अपनी कविताओं का पाठ करेंगे. उनकी जो किताबें हैं उसमें जश्न तन्हाई डॉक्टर जसकिरण चोपड़ा जी ने लिखी, ऑटम रागा उसमें लिखा, मेमोरीज़ ऑफ अनदर डे जिसकी आदरणीय नवतेज सरना जी ने बात की, फिक्शन एंड फिल्म, रस्किन बॉन्ड्स रोमांटिक इमेजिनेशन और मेरा शहर नाम से उनका एक काव्य संग्रह है जो देहरादून के बारे में है. उसी संग्रह में से कविताएं हमारे महनीय कवि जो मंच पर उपस्थित है वो पाठ करेंगे. अब मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूं. मैं दीपांजलि सिंह जी से, वो वैली ऑफ वर्ड्स के मंच पर पिछले कई सालों से कविताओं के सत्रों में, बुक लॉन्चेज़ में और कई बुक डिस्कशंस में भाग ले चुकी हैं. मैं दीपांजलि सिंह जी से गुजारिश करता हूं कि कृपया आप मंच पर आएँ और अपना काव्य पाठ करें. दीपांजलि सिंह जी. Good evening, everyone. I've been telling a lot of people that I'll be a part of this poetry session. और जितनी बार मैंने लोगों को बताया कि ये जसकिरण मैम की मेमोरी में है, तो मुझे एक ही जवाब मिला हर किसी से कि oh, she was so warm and such a sweet person, and we really miss her. So I'd like to start with her poem from her book. मेरा शहर. इस कविता का नाम है इश्क गया फसानों तक. तूने याद रखा मुझे ज़मानों तक, पहुँचा अपना इश्क देखो फसानों तक. मेरा नाम है अक्सर गूंजा तेरे शेरों में, और गया इसका असर अनजानों तक. शक्ल बदल बदल कर मिलता है तू, मेरी हर बात में अब तक झलकता है तू.
तुझसे मिले बीत चुकी सदियां, लेकिन मेरे वजूद में पल पल महकता है तू। अब तो शायद ही जाहिर में मिले हम, कलियों की तरह महके फूलों से खिले हम। जो राहें हमारी दोस्त हुआ करती थी, उन पर कभी एक साथ फिर चले हम। उनकी दूसरी कविता है तुझसा कोई। खुशी का एहसास सा हुआ अचानक, फिर मुझे कोई तुझसा तेरे जैसा जब नज़र आया, फिर मुझे झलक तेरी उसमें पाकर मैं हैरान रह गई। जानते हुए भी उसे मैं उससे अनजान रह गई। नए एहसास था उसे कि मेरे माजी का वो साया था, मुझे पल भर की खुशी देने जाने कहाँ से चला आया था। अब मैं अपनी एक हिंदी की कविता पढ़ना चाहूँगी, जो मेरी किताब स्प्रिंग ब्रीज से है। इसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है, सो इट्स गॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश पोम्स। इस कविता का नाम है सुंदर यह रात। यह टिमटिमाते तारे, यह चांद की रोशनी, कितनी सुंदर यह रात। मुस्कुराते हुए टिमटिमाते हुए सब कह रहे हैं, अंधेरे में भी कुछ खास है। अगर अंधेरा ना हो तो क्या दिखेंगे तुम्हें हम चांद और तारे। यह टिमटिमाते तारे, यह चांद की रोशनी, कितनी सुंदर यह रात। अगली कविता का नाम है बेटी। ये मैंने अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोच करके लिखा था। नन्हे नन्हे हाथ, मुस्कुराहट नन्ही नन्ही, धीमी धीमी सी चाल मुझे गले लगाती है मेरी बेटी। बेटी होती ही ऐसी है, चंचल तितली सी, चहकती एक चिड़िया सी, सूरज की नरमाहट सी, चांद की तरह अंधेरे में रोशनी फैलाती सी, तारे की तरह टिमटिमाती सी, प्यारी मुस्कुराहट सी, इंद्रधनुष के साथ रंगों सी, रंग रंगीली सी, फूल की तरह नाजुक सी, च्यवनप्राश के जैसे माँ बाबा की ताकत सी। बेटी होती ही ऐसी है, सूरज की किरणों सी। इस कविता का नाम है पता नहीं। ये मैंने यह सोच करके लिखी थी क्योंकि एक दिन मैं बस सोच रही थी कि पता नहीं मुझे ये जो कविता के अक्षर और कविता जो मेरे दिमाग में आती है, ये कहाँ से आती है, और मुझे खुद नहीं पता होता कि ये विचार कैसे आते हैं और कैसे कागज़ पे मैं इन्हें लिख डालती हूँ। सो इसका नाम है पता नहीं। पता नहीं दिल की दास्तां पन्नों पे कैसे आ जाती है, पता नहीं दिल की दास्तां काली स्याही में कैसे उतर आती है। ये काले अक्षर कभी लाल पीले नीले हरे नज़र आते हैं मुझे, हर पंक्ति का रंग बदल जाता है जब उनमें मेरे भाव उभर आते हैं। कुछ काले अक्षर प्यार की कुमकुम सा लाल रंग बिखेर जाते हैं, तो कहीं काली स्याही खुशी का गेंदे के फूल सा पीला रंग बिखेर जाते हैं। कभी मुझे उनमें समुंदर सा नीला रंग नज़र आता है, क्योंकि इन काले अक्षरों में
समुंदर सी गहराई है। पता नहीं दिल की दास्तां पन्नों पे कैसे आ जाती है, पता नहीं दिल की दास्तां काली स्याही में कैसे उतर आती है। I won't take too much time. So one in English. Accept the imperfections. So this I had written, many times we have doubts about, being perfect. We all want to be perfect. And nobody wants any imperfections. So I say, you need to accept your imperfections. When you look for perfections you shall not find. Accept the imperfections, as true beauty lies in imperfections. Art becomes art only when it breaks from perfections. Poetry becomes poetry only when your emotions rise above the ordinary. No perfections have ever been admired, as perfections are boring. It is the extraordinary imperfections that are loved. When you look for perfections you shall not find. Accept the imperfections, as true beauty lies in imperfections. Can I just one small one? Yes. This is on love. What you are to me. How do I tell you what you are to me? You to me are what the sun is to a sunflower. You to me are like the flowers are to a bee. You to me are like the sweet song of a nightingale to the ears. You to me are like a chocolate to a child. You to me are like a wave to a surfer. You to me are my whole world. So how do I tell you what you are to me? Thank you so much. हेलो, थैंक यू वेरी मच मैम। चूँकि हमारे पास वक्त की पाबंदियां हैं तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अगली कवित्री अमनदीप जी से गुजारिश करता हूं कि वो एक कविता डॉक्टर जसकिरण चोपड़ा जी की और 2 कविताएं अपनी कृपया उसका काव्य पाठ करें, फिर हम अगले कवि से गुजारिश करेंगे। अमनदीप जी। हेलो, या बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुनाया आपने। मैं सर की इजाज़त लेकर जसकिरण जी की एक कविता पढ़ती हूँ जो कि शायरी की तरफ मुझे लेकर जा रही है। उन्वान है गुज़र गया मौसम। एक मिनट। आए तुम कल तो बदल गया मौसम, तुमसे मिलने को मचल गया मौसम। गुज़रे हैं जाने कैसे ये साल तुम्हारे बिन, तमन्ना का कई बार गुज़र गया मौसम। बहारें हैं सब छिपी तबस्सुम में तुम्हारे, आँखों में तुम्हारी ही ढल गया मौसम। बहुत खूब। पल भर में ही उठकर तुम चल दिए, पल भर में ही उठकर तुम चल दिए, पीछे पीछे तुम्हारे ही चल दिया मौसम। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आगे है कि आए ना वो दिन लौट कर फिर कभी भी, आए ना वो दिन लौट कर फिर कभी भी, यूँ शहर में बार बार बदल गया मौसम। तो बहुत खूब, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और क्योंकि मौसम की बात जसकिरण जी ने की तो मैं भी मौसम से ही शुरू करती हूँ। लेकिन मौसम, बादल, बारिश, बरखा, हवाएं से पहले मैं आई स्टार्ट विद द केवियट विच सेज कि बरखा की सुंदरता को नवाजेगा वही, बरखा की सुंदरता को नवाजेगा वही जिसका पक्का मकान है कहीं। सो आई स्टार्ट विद दैट केवियट। और इसमें एक वर्ड है खिज़ां। खिज़ां इज़ पतझड़। तो अब ये है कि अब तो खिज़ां भी आकर चली गई, अब तो खिज़ां भी आकर चली गई, अब तो आ बारिश में भीगे हम तुम। सो ये उस तरह से है। और इसी बारिश को आगे बात करते हुए है कि तू ज़रा नज़र को झुका ले, तू ज़रा नज़र को झुका ले, इस बार भीगेंगे बारिश में हम।
तो है कि अब चलिए बारिश हुई, अब हवाओं पे आ जाते हैं। अर्ज़ किया है कि उसको खबर हमारी मिल ही जाती है, उसको खबर हमारी मिल ही जाती है, हवाएं इतनी भी बेवफा नहीं। शुक्रिया। और हवाओं पे ही है कि तू ज़रा घर के बरामदे में तो आ, तू ज़रा घर के बरामदे में तो आ, ये वही हवा है जो मुझको छू कर आई है। तू ज़रा घर के बरामदे में तो आ, ये वही हवा है जो मुझको छू कर आई है। और हवा से मुझे याद आया, एक बार सिंस आई एम मैरिड टू अ शिपी, तो आई वॉज ऑन द शिप और बहुत तेज़ हवा चल रही थी और मैंने कुछ दुपट्टा लिया हुआ था, बहुत उड़ रहा था, तो उस पर कपलेट था कि हमने भी कसकर दबोच लिया, हमने भी कसकर दबोच लिया, कमबख्त दुपट्टा भी आरजू लिए था। और ये है कि तू आया लौट कर तो ये राज खुला, तू आया लौट कर तो ये राज खुला, फूलों की महक कहाँ गायब थी। तो अगर इजाज़त हो तो मैं और कुछ एक और सुना देती हूँ, इजाज़त है सर? चलिए मैं ऐसे करती हूँ, मैं सीधा बंदगी पर आ जाती हूँ, मेरा बंदगी फोटे है, तो आई एंड विद बंदगी। अर्ज़ किया है कि खुदा के मंसूबे दिखने लगे हैं मुझे, दिखने लगे हैं मुझे, खुदा के मंसूबे दिखने लगे हैं मुझे, अब या तो वो थक गया है छिपाते छिपाते, या फिर उसने कबूल कर लिया है मुझे। तो खुदा के मंसूबे दिखने लगे हैं मुझे, अब या तो वो थक गया है छिपाते छिपाते, या फिर कबूल कर लिया है उसने हमें। और ये भी बंदगी है, याद तो नहीं है मगर, याद तो नहीं है मगर इस बात का एहसास कहीं है, याद तो नहीं है मगर इस बात का एहसास कहीं है, कुछ तो था तेरे मेरे बीच जिसकी पर्दादारी है। शुक्रिया। और है कि तू फ़कीर दिखने लगा मुझ में, तू फ़कीर दिखने लगा मुझ में, और ज़माना मुझे अमीर कहने लगा। बस ये आखिरी दो शेर हैं कि खुलकर कहते नहीं कि तुझसे इश्क है, खुलकर कहते नहीं कि तुझसे इश्क है, कहीं तुझे भी खुद पर गुमान ना हो जाए। और ये आखिरी शेर है, इस किताब का भी आखिरी है, वो है कि बस भी रूह को रंगने का हुनर हमने सीख लिया, रूह को रंगने का हुनर हमने सीख लिया, एक रंगरेज को आशिक जो बना लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद अमनदीप जी, आपने खूबसूरत काव्य पाठ किया। अगले कवि मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय अंजुम शर्मा जी। आप सभी उनको कई सत्रों में सुन चुके हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अंजुम शर्मा। शुक्रिया सचिन। एक कविता जसकिरण जी की याद में जो ये पूरा सत्र है उनकी, और 2 या 3 छोटी छोटी कविताएं मैं अपनी सुनाऊंगा। हेलो, हाँ। जसकिरण जी की कविता का शीर्षक है सपनों से आज़ाद। वो जो सिंदूरी सी सुबह थी क्यों धुंधली सी अब शाम हुई, ये बियाबां सी जिंदगी ही क्यों उस चाहत का अंजाम हुई। वो जो सिंदूरी सी सुबह थी क्यों धुंधली सी अब शाम हुई, ये बियाबां सी जिंदगी ही क्यों उस चाहत का अंजाम हुई। तुमने किए थे क्या क्या वादे, जाने कितने ही ख्वाब बुने थे, लेकिन जब तुम बदल गए मेरे दर्द फिर कहाँ सुने थे। कभी कभी आते हो याद, कर गए हो सपनों से आज़ाद, बहुत सादा है, बहुत सादा हुआ है जीवन, ना कोई शिकवा ना फरियाद। ये जसकिरण जी की कविता थी। अब मैं अपनी कविताओं पे आता हूँ। आप जानते हैं दुनिया भर में इस समय अलग अलग देशों के बीच युद्ध छिड़े हुए हैं, और उन सब के बीच दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं, दोनों तरफ के बच्चों की लाशें हम लोग देख रहे हैं। उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एक कविता है अगले 12 घंटे, क्योंकि पिछले दिनों 2 देशों के बीच 12 घंटे का सीज फायर हुआ था,
और उस सीज़ फायर में कहा गया था कि अब आप घरों से बाहर निकल सकते हैं, जो जो सामान खरीदना है खरीद सकते हैं, और 12 घंटे बाद फिर से युद्ध शुरू होगा। तो इस कविता का शीर्षक है अगले 12 घंटे। अगले 12 घंटे नहीं गिरेगी कोई मिसाइल, अगले 12 घंटे कोई रॉकेट नहीं छोड़ा जाएगा किसी के नाम, अगले 12 घंटे आसमान से नहीं उठेगा धुआं, अगले 12 घंटे नहीं पीटेगी कोई माँ अपनी छाती, घड़ी देखकर निकल जाएंगे पिता बची हुई संतानों के लिए घिघियाने रिरियाने, कुछ परिवार घरों को घरों में गाड़ कर दूर 12 घंटे दूर चले जाएंगे घरों से, अगले 12 घंटे सबकी आंखें सबके सिरों पर टंगी होगी, अगले 12 घंटे अभी और जीवित रहेंगे बच्चे अपनी माँओं के साथ। एक कविता है अक्टूबर। अक्टूबर में हम जानते हैं कि शिउली के फूल जो है वो झड़ते हैं और ज़मीन पर बिखर जाते हैं, तो अक्टूबर एक कविता है। ये अक्टूबर की 25 तारीख है और शाम रात भेजकर कहीं और शाम होने जा चुकी है। ये अक्टूबर की 25 तारीख है और शाम रात भेजकर कहीं और शाम होने जा चुकी है। सुख पारिजात की तरह झर रहे हैं, दुख महक रहे हैं रात रानी की तरह। मेरी सारी उम्मीदों का दिन शाम में उतरता है, मुझे सारी नाउमीदी रात में ख्याल होती है। मैं उम्मीदों पर विराम नहीं लगाना चाहता, नाउमीदियों पर तो बिल्कुल नहीं। मैं शिउली पर बैठकर शिउली की तरह नहीं चाहता टूटना महकना बिखर जाना। सुनो तुम अक्टूबर की तरह मत आना। एक कविता है संबंध। जरूरी नहीं वो वैसा ही हो जो जैसा दिख रहा है सामने या तस्वीर में या शब्दों में अपने। जरूरी नहीं वो वैसा ही हो जैसा दिख रहा है सामने या तस्वीर में या शब्दों में अपने। जो जैसा नहीं है वो सबसे अधिक कोशिश करता है वैसा दिखने की, जैसा कोशिशों पर कोशिशों के बाद भी वो दिख नहीं पा रहा। जरूरी नहीं वो वैसा ही हो जैसा दिख रहा है सामने या तस्वीर में या शब्दों में अपने। जो जैसा नहीं है वो सबसे अधिक कोशिश करता है वैसा दिखने की, जैसा कोशिशों पर कोशिशों के बाद भी वो दिख नहीं पा रहा। इतनी उपस्थिति, इतना आना जाना, इतना आत्मालाप, फिर भी ये भान ना हो पाना कि सत्य स्वभाव की विनम्रता है, जिह्वा की प्रत्यंचा नहीं। बर्फ की तरह पिघलना किसी को जीवन देने से अधिक अपना आरंभ है पुनः। भादों के उमड़ते बादल नहीं है संबंध, संबंध दिन में खिलती सांझ है, सांझ में खिलती रात और रात में खिलता दिन। एक अंतिम कविता से मैं बैठूंगा। कविता का शीर्षक है विरोधाभासों के बीच। विरोधाभासों के बीच तुमने मुझे अपनाया। जब निकाले जा रहे थे लड़के नौकरियों से मंदी की वजह बिताकर, जब निकाले जा रहे थे नौकरियों से लड़के मंदी की वजह बताकर, तुम मेरे करीब आई और अर्थशास्त्र के नकारात्मक आंकड़े सकारात्मक वृद्धि में बदलते चले गए। पहले हम मेट्रो की सीढ़ियों पर मिले, फिर मेट्रो में, फिर तुम्हारे कॉलेज के गेट पर, फिर हॉस्टल के आगे, फिर गाड़ियों के शोर में सड़कें हमारी सांसों की गवाह बनी, फिर ठंडा चांद, गीली घास और पीले पत्ते। जब लाल और हरे और नीले और पीले रंगों से दुनिया के कोर बांधे जा रहे थे, तुम अपने बालों के रंगीन रिबन से प्रेम की दुनिया खोल रही थी। फिर एक दिन नफरत की नाव दुनिया में तैरने लगी, विचारधाराओं में लपेट कर तमगे दिए जाने लगे। तुमने पानी में बुड़बुड़ करते हुए बुलबुले उठाए और उंगली से छूकर फोड़ दिए। दुनिया का खालीपन जब कभी मेरी जेबों में उतरा और आंसू ढुलक कर होठों के बीच जमा हुए, तब तुमने सिखाया कि टूटी चारपाई की टूटी निवाड़ की तरह दुख सिए जा सकते हैं।
फिर एक दिन हुआ यूं, तुम्हारे पिता आए, मेरे काम के बारे में पूछने लगे और तुम्हें ले गए। लड़के भी नौकरियों पर रखे जाने लगे, भर्तियां होने लगीं। तुमने मुझे फ़ोन किया और कहा, पुराने तालों को नई चाबियों से नहीं खोल पाएंगे हम, जाओ नौकरी पर चले जाओ। लेकिन तब तक मैं प्रेमी बन चुका था, मैं कवि बन चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद अंजुम जी, आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। हमारी अगली कवयित्री सुप्रिया नेवर जी, आपकी किताब जुस्तजू का कुछ घंटे पहले ही वर्ड्स हॉल में विमोचन हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कृपया आप मंच पर आएँ और एक कविता डॉक्टर जसकिरण चोपड़ा जी की और जी ठीक, और 2 अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। सुप्रिया नेवर जी। बहुत बहुत शुक्रिया। Good afternoon everyone, such a pleasure to be here. Very quickly I must say that I wasn't fortunate as many of you to have known Jaskiran ji personally, but when I went through her works and read some of her poems, it was startling because so many times I had to pause and I felt as if I was reading my own voice over and over and over again. And I think that is the hallmark of a timeless poet who makes you feel as if this could have been your pen or hers. Is it an external thought, or is it an echo of my own thought? So I'll read out a short poem of hers and then go on to share a couple of mine with you. And I also happen to write in multiple languages as she did, which was another point of resonance. ये बड़ी दिलचस्प है कविता, छोटी सी, जिंदगी बुलाती है। शीर्षक ही इतना सुंदर है, जिंदगी बुलाती है। कुछ तो होगा इस मौसम में जो दिल को बहकाता है, कुछ तो होगा इस मौसम में जो दिल को बहकाता है। हर साल इन दिनों ये मौसम चला आता है। कुछ तो होगा इस मौसम में जो दिल को बहकाता है, हर साल इन दिनों ये मौसम चला आता है, और यादों की दिवाली मुझको रुलाती है। यादों की दिवाली मुझको रुलाती है, इस मौसम में मुझे फिर जिंदगी बुलाती है। She ties it up with the title कि जिंदगी बुलाती है, और लास्ट वर्स है कि कहती है, मौसम कह रहा है उनसे, कहती है जी लो अब, रुत ये प्यारी आई है। कहती है जी लो अब, रुत ये प्यारी आई है। गुलाबी सी सर्दी और उत्सव, गुलाबी सी सर्दी और उत्सव, महक उठी मेरी तन्हाई है। ये लास्ट लाइन बड़ी गजब की है कि तन्हाई किसी की महकती नहीं है। तन्हाई को कोई महका हुआ अंदाज से तन्हाई का बयान नहीं करता है। तो ऐसा मौसम कुछ ऐसा खुशगवार है कि मेरी तन्हाई महक चुकी है। तो ये बहुत बहुत खूबसूरत लगी उनकी ये कविता। और 2 एक छोटी कविताएं मैं अपनी, शायद एक गज़ल और एक कविता पढ़ देती हूँ। एक आजकल हम जिस तरह से लाइफ लीड कर रहे हैं, वी आर ऑल सो कॉट अप। आजकल तो कोई किसी को फ़ोन भी बगैर अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। पहले व्हाट्सएप पर अनुमति लेनी होती है, कैन आई कॉल यू, उसके बाद 1 घंटे बाद मैसेज आता है, यस कॉल मी इन द इवनिंग। तो वो इस तरह से हमारी लाइव्स चल रही हैं। इसके बीच में, ये सारा आपाधापी के बीच में, एक मुझे ये सूझा कि आखिर हम रोज़मर्रा में कहाँ सुकून और शांति और कुछ खुशी छोटी अपनी कैसे बचाएं, कैसे खोजें। तो ये जवाब ऐसा मिला मुझे कि गर्मा गर्म चाय की चुस्की हो, ना बंद हो वो हिचकी हो। गर्मा गर्म चाय की चुस्की हो, न बंद हो वो हिचकी हो। नुक्कड़ वाली दुकान हो, खुला नीला आसमान हो। ज़बानी याद है वो किताब हो, अमावस के बाद वाला महताब हो। ज़बानी याद है वो किताब हो, अमावस के बाद वाला महताब हो। रविवार की अंगड़ाई हो, रविवार की अंगड़ाई हो, नौकरी की पहली कमाई हो। सब मिल के गाएं वो गाना हो, सब मिल के गाएं
वो गाना हो बिना बात के खुशी का बहाना हो, बटुए में दबाई हुई तस्वीर हो। बटुए में कुछ मर्द हैं यहाँ हंस रहे हैं। बटुए में दबाई हुई तस्वीर हो, सफ़र सुहाना कर दे वो राहगीर हो। दिल से दी गई शाबाशी हो, दिल से दी गई शाबाशी हो, उतारे ना उतरे वो मदहोशी हो। दिल से दी गई शाबाशी हो, उतारे ना उतरे वो मदहोशी हो। ना मांगे सबूत वो एतबार हो, ना मांगे सबूत वो एतबार हो। वो किस्सा जिस पे आती हंसी बार बार हो, वो फ़ोन नंबर जो हमेशा याद हो, वो आंगन जो बच्चों से आबाद हो। पत्तों पे चमकती ओस की बूंदें हों, सिमट जाए संसार जिसमें वो कांधे हों। कुछ कर गुजरने का जुनून हो, कुछ कर गुजरने का जुनून हो। कुछ हो न हो रोज़मर्रे का सुकून हो, कुछ हो न हो रोज़मर्रे का सुकून हो। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल पढ़ देती हूँ। आप लोग ज़रा इरशाद कह दें तो गज़ल का आगाज़ किया जाए। जी शुक्रिया। ख्वाहिशों की आदत है अधूरी रहती हैं। क्या आदत है ख्वाहिशों की? ख्वाहिशों की आदत है अधूरी रहती हैं, साहिल और कश्ती में एक दूरी रहती है। ख्वाहिशों की आदत है अधूरी रहती हैं, साहिल और कश्ती में एक दूरी रहती है। और मंच से बयान नाप तोल कर देते हैं, मंच से बयान नाप तोल कर देते हैं। ओहदे वालों की देखिए मजबूरी रहती है। मंच से बयान, शुक्रिया, नाप तोल कर देते हैं। ओहदे वालों की देखिए मजबूरी रहती है। और बिना कुछ कहे सब उगल देती हैं, बिना कुछ कहे सब उगल देती हैं। इन कमबख्त आँखों की कमज़ोरी रहती है। बिना कुछ कहे सब उगल देती हैं, इन कमबख्त आँखों की कमज़ोरी रहती है। और कल्पनाओं पे सवार उड़ा ले जाते हैं, कल्पनाओं पे सवार उड़ा ले जाते हैं। शायरों के लफ्ज़ों में कस्तूरी रहती है। शुक्रिया। बिना कल्पनाओं पे सवार उड़ा ले जाते हैं, शायरों के लफ्ज़ों में कस्तूरी रहती है। और दिमाग को क्या दोष दें, वो अपना काम बाकायदा करता है। दिमाग को क्या दोष दें, वो अपना काम बाकायदा करता है। ये दुष्ट दिल ही है जिसकी नीयत बुरी रहती है। वेरी बैड। ये दुष्ट दिल ही है जिसकी नीयत बुरी रहती है। और आखिर है कि लाख हो चुनौतियाँ दो पल के इस जीवन में। हम में से यहाँ कोई नहीं जिसको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा है या आगे नहीं पड़ेगा। और सबों के जीवन दो पल के ही हैं। तो लाख हो चुनौतियाँ दो पल के इस जीवन में, चलते जाने की मगर कोशिश पूरी रहती है। बहुत शुक्रिया। हेलो, बहुत सुंदर। आप लोग अच्छे शेर पर दो दाद दो। लाइंस। जी ग्रीड ऑफ अ पोएट। जी 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 ज़रूर। आप लोग But अच्छे I शेर पर promise वाह you कह कि सकते हैं, दाद दो दे ही सकते हैं, lines तालियां हैं। बजा सकते हैं। जी दो ही लाइंस है। और क्योंकि मैं ये किताब का नाम जुस्तजू है, और मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जुस्तजू आखिर क्या है, क्यों रखा गया है ये नाम। तो एक जुस्तजू है जीवन, ये सफ़र अभी जारी है। एक जुस्तजू है जीवन, ये सफ़र अभी जारी है। ज़रा बहुत पल्ले पड़ा है, ज़्यादा पे पर्दादारी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। आपने पहला शेर ख्वाहिशों पर पढ़ा। मिर्ज़ा गालिब मुझे याद आते हैं, जिन्होंने लिखा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरा हज़ारों- रिंगटोन है, मेरा रिंगटोन है। जी जी बेहतर। हाँ, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी
कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। लेकिन अच्छे शेरों का, अच्छी कविता का जो अरमान है आपका, कम वो उसकी ख्वाहिश कम नहीं रहेगी। उसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वरिष्ठ कवि ममता किरण जी को। आपसे मैं गुजारिश की कृपया मंच पर आकर काव्य पाठ करें। ममता किरण जी, आप लोग अच्छे शेरों पर दाद दें, तालियां बजाएं, झिझके नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। जसकिरण जी की स्मृतियों को नमन करती हूँ और उनकी एक कविता पहले पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इसका शीर्षक है मीठी बरसात। मीठी बरसात। कि अब ना पूछो हमसे बरसात कैसी गुजरी, जीवन से भी लंबी, उम्मीद से भी बढ़कर, प्यार से भी मीठी। धुल गए मलाल सब, छट गए सवाल सब, खुल गए हर दिन हम पे कुदरत के कमाल सब। चमकने लगे मन में हर बूंद के सितारे, दिल चुरा के ले गए पहाड़ों के सब नज़ारे। मुद्दत के बाद शायद बरसात ऐसी आई, ना तीर सी चुभी जब हमको तेरी जुदाई, ना तीर सी चुभी जब हमको तेरी जुदाई। तो ये तो उनकी एक कविता थी। और अब मैं अपने गज़ल के कुछ शेर पढ़ती हूँ, यहाँ से सुनिएगा। कि तुम, शायरी क्या है, कविता क्या। अच्छा, तो मैं इधर से पढ़ती हूँ। अच्छा, बैठ के चलिए। हेलो। सुनिएगा। कि तुम्हारे भीतर सुलगते प्रश्नों का ज़लज़ला है, वो शायरी है। कि तुम्हारे भीतर सुलगते प्रश्नों का ज़लज़ला है, वो शायरी है। समय के सीने में तुमने इनको जो लिख दिया है, वो शायरी है। कि समय के सीने में तुमने इनको जो लिख दिया है, वो शायरी है। शेर सुनिए। कि ये रिश्ते नाते, ये घेरे बंधन, उलझता है मन इसी गणित में। कि ये रिश्ते नाते, ये घेरे बंधन, उलझता है मन इसी गणित में। कोई हमारे जो दिल के भीतर पुकारता है, वो शायरी है। कि कोई हमारे जो दिल के भीतर पुकारता है, वो शायरी है। और शेर सुनिएगा। कि इधर उधर की और दिल की बातें या सुन रहे हैं ये घर की बातें। कि इधर उधर की और दिल की बातें या सुन रहे हैं ये घर की बातें, मगर हवाओं ने कान में जो मेरे कहा है, वो शायरी है। बहुत शुक्रिया। कि जी, तालियां बजा सकते हैं आप लोग। कि मगर हवाओं ने कान में जो मेरे कहा है, वो शायरी है। और तलाश करने जो तुम हो निकले, कि तलाश करने जो तुम हो निकले, क्या शायरी है तो जान लो ये। कि तलाश करने जो तुम हो निकले, क्या शायरी है तो जान लो ये। हसीन कुदरत, कि हसीन कुदरत के होठों पर जो कह कहा है, वो शायरी है। कि हसीन कुदरत के होठों पर जो कह कहा है, वो शायरी है। और ये अलग रंग का शेर। कि करोड़ों लोगों का भूखा सोना नज़र न रहबर को आज आए। कि करोड़ों लोगों का भूखा सोना नज़र न रहबर को आज आए। बयान जो कर सके, कि बयान जो कर सके, क्यों चूल्हा बुझा हुआ है, वो शायरी है। कि बयान जो कर सके, क्यों चूल्हा बुझा हुआ है, वो शायरी है। और अंतिम पढ़ती हूँ इसका शेर। कि ये जीस्त क्या है कहाँ से आए। कि ये जीस्त क्या है कहाँ से आए, वजूद क्या है कहाँ है जाना। ये जीस्त क्या है कहाँ से आए, वजूद क्या है कहाँ है जाना। कभी किसी से सुलझ ना पाया जो फ़लसफ़ा है, वो शायरी है। कि कभी किसी से सुलझ ना पाया जो फ़लसफ़ा है, वो शायरी है।
तुम्हारे भीतर सुलगते प्रश्नों का जलजला है, वो शायरी है। समय के सीने में तुमने इनको जो लिख दिया है, वो शायरी है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के 3-4 शेर और पढ़ देती हूँ, सुनिएगा। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनके लिए यहाँ से ये मतलब पढ़ती हूँ इस गज़ल का, कि वो अपने सिवा औरों की, आजकल का जो समय है उसे भी अपने जहन में रखिए और फिर इस गज़ल के शेर सुनिए, कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। बहुत शुक्रिया। कि कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। और शेर सुनिए, कि वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, कि वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, ये दौर की आईना गवारा नहीं करते, कि ये दौर कि आईना गवारा नहीं करते। और शेर सुनिए, कि खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नज़र वो, कि खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नज़र वो, मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। जी, बहुत शुक्रिया। कि मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। और शेर सुनिए, कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते। शुक्रिया। कि सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते। और ये शेर, कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, आँखों में, कि आँखों में हया रखते हैं पर्दा नहीं करते, कि आँखों में हया रखते हैं पर्दा नहीं करते। और अंतिम शेर पढ़ती हूँ, कुछ लोग बहुत शिकायतें ही करते रह जाते हैं उनके लिए, कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते, कि हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते। वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ ममता किरण जी। गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियां हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और कभी कभी ऐसे कवियों को सुनना भी सौभाग्य होता है, जिस कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस कवि श्रृंखला के हमारे वरिष्ठ कवि डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। आपसे सर गुजारिश की कृपया मंच पर आकर कविता पाठ करें। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आप लोगों से गुजारिश है कि ज़ोरदार तालियों से जी। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले जसकिरण जी के लिए दो पंक्तियाँ, कि वो और होंगे सिमट जाएं जो तस्वीरों में, वो और होंगे सिमट जाएं जो तस्वीरों में, वो और होंगे सिमट जाएं जो तस्वीरों में, मैं लफ्ज़ लफ्ज़ फ़ज़ाओं में बिखर जाऊंगा, कि मैं लफ्ज़ लफ्ज़ फ़ज़ाओं में बिखर जाऊंगा। जसकरण जी की ये कविता, ये गज़ल नुमा कविता है, सुनाता हूँ। जाने क्यों माजी के साए नहीं जाते, जाने क्यों माजी के साए नहीं जाते, नए रिश्ते क्यों हमसे निभाए नहीं जाते, कि नए रिश्ते क्यों हमसे निभाए नहीं जाते। और लाख कहे कोई कि फिर, लाख कहे कोई कि फिर से शुरू करो, लाख कहे कोई कि फिर से शुरू करो, गहरे हों ज़ख्म तो भुलाए नहीं जाते, गहरे हों अगर ज़ख्म भुलाए नहीं जाते। और यूँ शेर यूँ हुआ कि रूठा हुआ रब तो फिर भी मान जाता है, रूठा हुआ रब तो फिर भी मान जाता है, रूठे यार लेकिन दोस्तों मनाए नहीं जाते,
कि रूठे यार लेकिन दोस्तों मनाए नहीं जाते। लुट गए एक बार हम बीच सफ़र में यूं कि लुट गए एक बार हम बीच सफ़र में यूं कि अब हमसे नए ख़जाने कमाए नहीं जाते, कि अब हमसे नए ख़जाने कमाए नहीं जाते। और अंतिम पंक्तियां हैं, आशियाना ढह गया हमारा इस चमन में, आशियाना ढह गया हमारा इस चमन में, अब रेत के महल हमसे बनाए नहीं जाते, अब रेत महल हमसे बनाए नहीं जाते। तो ये पंक्तियां, ये कविता जसकरण जी की थी। और मैं पहली कविता के लिए 2-3 क्षणिकाएँ आपसे साझा करता हूँ, 2 क्षणिकाएँ। पहली ये है कि दुनिया भर की सारी धार्मिक किताबों ने एक सामूहिक अपील जारी की है, कि दुनिया भर की सारी धार्मिक किताबों ने एक सामूहिक अपील जारी की है कि हम आपकी श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के लिए हृदय से आभारी हैं, कि हम आपकी श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के लिए हृदय से आभारी हैं, लेकिन काश आप हमें पूजने की बजाय हमें पढ़ लेते। अरे बहुत छोटी सी एक क्षणिका नुमा कविता ये है, बहुत सादा सी कविता। बच्चे ने पिता से पूछा, बच्चे ने पिता से पूछा, आखिर पुराने ज़माने में ऐसी क्या बात थी कि दादा हर समय उसकी तारीफ किया करते हैं। आखिर पुराने ज़माने में ऐसा क्या था जिसकी दादाजी हमेशा तारीफ किया करते हैं। पिता ने कहा, ऐसा ख़ास तो कुछ भी नहीं था। हाँ, हवा हवा थी, पानी पानी था, नदियाँ नदियाँ थीं, मौसम मौसम थे, रिश्ते रिश्ते थे, और सबसे बड़ी बात ये कि आदमी आदमी था। दो तीन माहिए, क्योंकि नौतेज जी भी हैं, पंजाब यहाँ भारी मात्रा में है जी। 2-3 माहिए, बहुत प्यारा सा छंद है और विलुप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, टप्पे भी कहते हैं इसको जी। सुनिएगा कि जो, अब देखिए माहिया मूलतः तो मोहब्बत के लिए था, लेकिन सारी विधाएं अपना रूप बदल लेती हैं, गज़ल भी बदल गई। सुनिएगा कि जो लोग शिखर पर हैं, जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। दूसरा माहिया सुनेगा जी, बहुत शुक्रिया। बस ये ही तरीका है, बस ये ही तरीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है। और एक अलग तरंग का माहिया सुनेगा, जैसे मैंने कहा नए नए चीज प्रयोग होते हैं विधाओं में, कि वोटों की मेहरबानी, वोटों की मेहरबानी, अपराधी जी की, अपराधी जी की संसद में अगवानी। और अंतिम माहिया सुनेगा कि जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का, झूला सपनों का, और वक्त की डोरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पहली कविता मान के चलिए, दूसरी एक गज़ल साझा करके विराम दूंगा कविता पाठ को। गज़ल यूँ है कि पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से, पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से, पैगाम कोई आया है चंदा की ओर से। कि पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से, पैगाम कोई आया है चंदा की ओर से। और शेर ये है कि बरसों हुए मिला था अचानक कभी कहीं, बरसों हुए मिला था अचानक कभी कहीं, अब तक बंधा हुआ है जो यादों की डोर से। कि अब तक बंधा हुआ है जो यादों की डोर से। और शेर ये है
कि मुझको तो सिर्फ उसकी खामोशी का था पता, कि मुझको तो सिर्फ उसकी खामोशी का था पता, हैरान हूँ पास आके समुंदर के शोर से, कि हैरान हूँ पास आके समुंदर के शोर से। और शेर ये है कि मैं चौंकता हूँ जब भी नजर आए है कोई, मैं चौंकता हूँ जब भी नजर आए है कोई, इस दौर में भी हंसते हुए जोर जोर से, कि मैं चौंकता हूँ जब भी नजर आए है कोई, इस दौर में भी हंसते हुए जोर जोर से। और गजल का आखिरी शेर कि ये क्या हुआ है उम्र के अंतिम पड़ाव पर, ये क्या हुआ है उम्र के अंतिम पड़ाव पर, ये क्या हुआ है उम्र के अंतिम पड़ाव पर, माजी को देखता हूँ मैं बचपन के छोर से, कि माजी को देखता हूँ मैं बचपन के छोर से। पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से, पैगाम कोई आया है चंदा की ओर से। बहुत धन्यवाद सर। अंतिम में मैं आग्रह करता हूं आशुतोष सकलानी जी से, इस सत्र के को चेयर, कि आप कृपया सूक्ष्म संबोधन के लिए कृपया मंच पर आएं। आशुतोष सकलानी जी। Good evening. Sanjeev sir, thank you very much for a beautiful evening जो बहुत सही मायने में ट्रिब्यूट जसकिरण के लिए हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने उसकी पोइट्रीज पढ़ी और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा जाते जाते साधना जी, रत्ना जी, इनका इनकरेजमेंट भी रहा। पहला मैंने इनको बताया है कि आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन, नॉट अ पोएट, मैरिड टू अ पोएट। तो कुछ चीज़ें क्रिएटिविटी शायद रब करी, मुझे नहीं पता लगा, लेकिन व्हेन शी लेफ्ट तो सडनली आई रियलाइज्ड कि कुछ लिख सकता हूँ मैं। तो वो एक फीलिंग्स आई जो मैंने अभी जसकिरण के लिए लिखा है, तो वो कुछ लाइंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। God, don't you think the end of Just was quite abrupt and untimely on your part? At least for last few years, you could have noticed the feelings of my heart. The flowing unconditional love, the compassion towards my beloved, and second innings of togetherness was just to start. Your feeling for her and your tremendous love was all fine, but the jealousy towards me, oh God, can never be God's part. Let me confess one thing, that this was not fair. And I know that our togetherness and love was too little for you to care. What has happened had to happen, Almighty, but her lonesome journey to your place is causing me quite an anxiety. Do's and don'ts, please try to adhere once she is with you. My beloved is quite delicate, soft-hearted, frightened of death, which she will never confess to you. Do pamper her like a spoiled child, which she'll enjoy till the hilt. Her smile sometimes mixes with tears and laughter, and usually after that she covers herself with a beautiful pink quilt. She just sleeps like an angel, Almighty. Please ensure that she sleeps well. Do not let any of your people around disturb her. It is your duty, Almighty, to tell. Comb her hair with a flowery comb very softly. The sufferings given by you when she was alive in the form of medicines have been quite ghastly. Whenever she misses me, ensure that she peeps down from the sky. Though in sorrow, but please make her smile. I will also try till that time not to cry. Though the list is long, but these are some few which will keep my little delicate strong. Oh, the last thing I forgot, Almighty, is the song which she'll love all the time. The journey of her, you made it short. I expected my togetherness with her slightly long.
Thank you. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ इस सत्र में जुड़े रहे। ये काव्य पाठ यहीं समाप्त होता है। एक क्लासिक शायर हुए हैं उर्दू के, मीर तकी मीर। उन्होंने लिखा था कि दिल मुझे उस गली में ले जाकर और भी खाक में मिला लाया, दिल मुझे उस गली में ले जाकर और भी खाक में मिला लाया, अब तो चलते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद हमारे सभी कवियों का, आप सभी का। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए गुजारिश करता हूं सतीश शर्मा जी से। मैं सतीश शर्मा जी से गुजारिश करता हूं कि हमारे मंचासीन कवियों को वैली ऑफ वर्ड्स परिवार की ओर से वाव किट बैग भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। हॉल कोऑर्डिनेटर से मेरी गुजारिश की कृपया वाव किट बैग्स। हमारे साथ वरिष्ठ कवि ममता किरण जी, आप सभी से गुजारिश की तालियां बजाकर हमारे कवियों का। ममता किरण जी, अंजुम शर्मा जी, इस सत्र के हमारे दीपांजलि सिंह जी, अमनदीप जी, सुप्रिया नेवर जी, वरिष्ठ कवि डॉक्टर लक्ष्मी शंकर बाजपेयी जी, इस सत्र के को चेयर आशुतोष सकलानी जी, और इस सत्र के चेयर नवतेज सरना जी। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम अगले सत्र की ओर चलेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी कवियों का, आप सभी का जो हमारे साथ इस सत्र में बने रहे। बहुत शीघ्र हम अपने अगले सत्र की ओर, जो हमारा समापन सत्र भी होगा, और वाव बुक अवार्ड्स के 8वें एडिशन में वाव बुक अवार्ड्स 2024 के जो 8 कैटेगरीज में विजेता हैं, उन सभी को वैली ऑफ वर्ड्स परिवार सम्मानित करेगा। आपसे गुजारिश है कृपया अपनी जगहों पर बने रहें। शुक्रिया, आभार।